Hello guys, how are you all? Hope you are doing good. So today we are going to do chemical kinetics from your chemistry class 12th. Right. So this video will be in parts, not a one shot. There it will cover till your JEE Advance. Right. Don't feel like if you are only preparing for boards or maybe for NEET or JEE mains, this won't be helpful. It is not like that. I will tell you which part is only for JEE Advance and you can skip that part, right? And other all will be also applicable for this, right? So let's begin. First of all, let's begin with some of the basic ideas. Like in this chapter we are going to learn about rate. What is rate? I will tell you further. Then types of rate, like then about the order, like first order, second order. Don't get panic, I'll tell you everything. It's very easy chapter. Okay. Okay, then we will be discussing about rate law, which you have studied a bit in your equilibrium chapter, right, of 11th, but not much. Don't worry, if you are even not knowing about it, I'll say from basic, right? I'll be thinking as you know nothing priorly about this, right? So don't worry about it. And then we will be talking about the series reaction going in the series, right, and parallel. Both of this we'll be talking about, and the rate of it, order of that, right? And at last but not the least, Arrhenius equation. From that Arrhenius equation we will be also talking about collisions of atoms, and from there you will be knowing how actually reaction occurs. What you know till now is a real half real thing, but collision is behind your every reaction. So let's begin with this. First of all, what is rate? Rate क्या है? तो रेट कुछ भी कोई भी चेंज हो अपॉन with respect to time, we call that as a rate, right? Rate of moving is at what rate we move. या distance, rate of change of distance, या rate of change of displacement is your velocity. Then rate of change of your velocity, that is your dv by dt, is your instantaneous acceleration, or you can say d delta v by delta t is your acceleration, right? It is change of something, or right here we are talking about velocity with respect to time, right? There is also one more thing known as gradient is change of something which we are studying with respect to change of distance, right? So here, are you clear with the rate? And here the rate we will be talking about the concentration rate, like how it changes, how concentration changes. It will come further, don't worry. When it comes I will explain you clearly, right? Now, what is chemical kinetics? It deals with the study of change in concentration of reactant and product with respect to time. So this is what we are going to study in this chapter. Kinesis means movement, right? And here we are going to study how, by what, like it deals with the study of change of concentration of reactants or products with respect to टाइम, ठीक है? सो आपको रेट का मतलब पता चल गया. हियर change in like concentration of reactants we can take upon delta time, change in particular time, ठीक है, right? Let's move further then. Now there are types of reaction on the basis of rate. On the basis of rate, how? Let's discuss. फर्स्ट इज़ वेरी स्लो. रेट मतलब क्या? वो टाइम पे कितना ख़त्म हो रहा है, तो बहुत धीरे धीरे, वेरी वेरी स्लो. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयन, रस्ट लग जाना आयन को, इट टेक्स ईयर्स, राइट? जैसे आप बाहर से कुछ खरीद के लाए और डायरेक्ट रस्ट लग गया, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता ना. इट विल टेक टाइम. देन देर इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन.
it occurs in seconds or minutes. For example, like it is maximum ionic reaction. Ionic reaction will happen like that. Like acid plus base gives you salt plus water. Revising your 10th, right? So you should also be clear about your some of the things of 10th, 9th, right? It will be helpful for your exams, right? So like HCl plus NaOH will give you NaCl plus H2O, right? And here in this chapter we will be mostly talking about moderate reaction. ठीक है, बहुत फास्ट भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं. जैसे कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं. एक एग्जांपल में दे देती हूँ. N2 plus 3H2 gives you 2NH3. It is also a reversible reaction. ठीक है, and this is important for your this chapter because we are going to study about this, right? Now let us go with rate formulation. Here if you are going to give JEE or any exams, but mainly JEE, it will focus on formula. But yeah, it is for JEE main. JEE advanced also go with formula as well as basic concept. ठीक है, कंसेप्ट बिना भी नहीं चलेगा. ऐसा नहीं कि सारे फॉर्मूलाज रट लिए अब तो मैं फोड़ के लाऊंगी या फोड़ के आऊँगा, नहीं. ठीक है, कंसेप्ट भी जानना ज़रूरी होता है. तो रेट इधर क्या है, डेल्टा, सॉरी इट्स नॉट विजिबल, डेल्टा, दिस इज आर, चेंज इन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी. इसे फर्दर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. For example, let us take a reaction from A to B. Let at t equals to 0 seconds इसका कंसंट्रेशन हो A और इसका कुछ नहीं, 0. अभी तो रेट हमने रिएक्शन चालू किया है, तो स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट का तो 0 ही होगा. ठीक है, बट व्हेन वी टेक t equals to t, ठीक है, तो A माइनस एक्स और इधर बन जाएगा x. दिस यू हैव लर्नड इन योर केमिकल इक्विलिब्रियम. गो थ्रू दैट वीडियो इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट इट, बिकॉज दिस आर द सम ऑफ द बेसिक थिंग्स which I cannot explain you again from the base, right? Because it consists of whole chapter. ठीक है, and that it is a base of that chapter too. So please see that video if you are not aware about it or if you are getting confused about it. ठीक है, तो in this case what will be our rate क्या होगा, let's see. Let me write it a little bit smaller. So here our rate will be, let us write rate delta A minus x minus A. Why we have done minus A? Because this is final minus initial upon t minus 0. So this we will get as x upon t. Sorry, and minus sign. What does a minus sign represent? Minus sign represent किए ना, it is getting less, कम होता जा रहा है. ठीक है, by time it is getting less, nothing else. ठीक है, अभी हम थोड़े एग्जाम्पल्स करते हैं. Right, okay, one more thing. Now we are doing, this was with respect r of, it was common rate, but with a what it would be, r equals to x by t. R of A is minus x by t, right? We just solved it and that was R of A. If we are talking general about rate, then it will be R of A, let me write x by t. And R of B क्या होगा? First it was final is x minus 0 upon t minus 0. So that will give you x upon 0. Right or not? Am I correct? So by this what can you say? R equals to minus RA. Can you say that?
and that is equals to r of b. Is it clear? Is this clear, this part? Okay, it was not visible properly, so I removed it. ठीक है, इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ. ठीक है, so let us take some of more examples based on this. For example, now your reaction is 2a plus b gives you c. So in this case, okay, just a second. In this case, your r of a will be kya? Okay, let me first write with basic things, otherwise it will be little bit confusing. At t equals to 0, this will be some a, this will be b, this will be 0. At t, a minus 2x we will do. Why minus 2x? Because here it is 2a coefficient, we need to combine with it, right? Are you sure? And here a minus x. Why? Because coefficient is, oh, it vanished. I'm so sorry. So do I need to write it again? Let me write. Sorry for the handwriting. A minus 2x, b minus x, and here from 2x plus x. So this will be your 3x. Right? Right? Clear with this much? Can I move further? Okay. तो हम r of a लिख देते हैं. r of a क्या था? minus 2x upon t. Now I am not going to write again a minus a. That will get cut. Hope you are knowing it. Now you are in 12th, right? You should be little bit using your common sense. And I know you have lots of it, right? R of b will be your minus x upon t. And r of c will be 3x upon t. ठीक है? And r, what will be your r? X upon t. Now let us write the the relation. Let us equate it with r. R, can I write r as minus 1 by 2 of re? If you do you r a के साथ मल्टीप्लाई करो minus 1 by 2. 2 के साथ 2 कटेगा, माइनस के साथ माइनस के साइन कटेगी, क्या बचेगा? x by t, that is your r. ठीक है, this will be equal to your minus of r of b. This will be equals to your r of c by 3. इससे क्या पता चलता है हमें कि कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा. कोफिशिएंट विल बी इन डिनोमिनेटर और रिएक्टेंट के लिए क्या लग जाएगा? माइनस के साइन, एंड प्रोडक्ट विल बी इन पॉजिटिव ओनली. अभी let us take a common example, right, which is AA BB. Don't get confused, CC plus DD. In this case, come on, take 2 minutes and write what will be the relation with R of A, R of B, R of C, R of D. Come on. I'm giving you 2 minutes, right? Waiting for you. Or you can just pause the video and also write. Done? Okay. So let's see what comes. It is, this both are your reactant. So it will get you minus sign. Just a second. माइनस लगा देंगे हम आगे. ठीक है, इन दोनों में क्या प्लस ही रहेगा, आर डी एंड आर सी में. अभी मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम? कोफिशिएंट कम्स इन डिनोमिनेटर. सो 1 over a. थोड़ा बड़ा हो गया a 9 जैसा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. 1 over a, इधर 1 over b, इधर 1 over c, and here 1 over d. If this is correct, very good, congratulations to you. ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ. यूज योर लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस एंड ऑल विल बी ईजी.
Right, let me just drink a water. So let's continue. In between, I'll be asking this question to revise this topic again. Right, let's continue. Now, types of reaction on the basis of completion. How does it complete? फर्स्ट इज सिंपल और एलिमेंट्री. सिंपल नाम से ही क्या पता चल रहा है कि इट इज सिंपल. ठीक है, वो सिंपल तरीके से एक स्टेप में ही ख़त्म हो जाएगा. जैसे सिंपल लोग, अगर ये स्कूल है या कोई भी कोचिंग आपकी ले लो और इधर आपका घर है. ठीक है, सिंपल लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट घर पे जाएंगे, पढ़ने बैठेंगे. लेकिन 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 क्या होगा, ये वन स्टेप रिएक्शन होगा. लेकिन क्या कि कॉम्प्लेक्स लोग कोई होते हैं जो ऐसे जाना पसंद नहीं करते. दे विल प्रिफर दिस वे एंड विल गो होम, कि थोड़ा समय भी जाए, पढ़ना भी कम पड़े. राइट, ऐसा सब होता है. चलो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फॉर सिंपल लोग का. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. N2 plus 3H2 gives you 2NH3. All are in gases. ठीक है, all are in gases. This is a one step reaction. एक स्टेप में ही हो जाता है और एक स्टेप में वापस भी आ जा सकता है. ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन आर जनरली रिवर्सिबल. हर बार ऐसा नहीं होता. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इजीली वन स्टेप है तो वापस भी आ सकता है. अभी ऐसे गया है, फॉर एग्जांपल ये कोचिंग से घर गया है, उसने सीधा रास्ता पकड़ा है कि इधर से ही मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा, तो उसे पता है यही रास्ते से पीछे जाने का. लेकिन कॉम्प्लेक्स लोग क्या, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर 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 घूम के. अभी उनको कैसे पता होगा वो कहाँ से चले थे. ठीक है, वापस तो वही रास्ते से वो जा नहीं सकते ना, मुड़ जाएंगे. और वैसे वो है भी कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स को सोच के कहीं घूम के जाएंगे वापस. ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रही हूँ, आपको समझ आए इसलिए मैं बता रही हूँ कि सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन या वन स्टेप रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है. ऐसा कुछ आप समझना मत, खुद से कथा मत बना लेना. ठीक है, ठीक है. नाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. हमारा भाई आ गया अभी, कॉम्प्लेक्स भाई. ठीक है, बोला कि सिंपल मेरे से पहले आ गया, ऐसा नहीं चलता, मैं भी आ रहा हूँ, दौड़ के आया वो भी. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है, वो एक से ज़्यादा स्टेप पे घर पे पहुँचता है, एक से ज़्यादा बार रोड बदलता है. ठीक है, कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं. ठीक है, फिर मैं आगे हम बात करेंगे इसके बारे में. अभी तो सिर्फ हम एग्जांपल एक आधा याद रख लो, वही काफ़ी है. फिर आगे आएगा तो और समझेंगे, मतलब जैसे टॉपिक आता जाएगा हम समझते जाएंगे. ठीक है, कॉम्प्लेक्स के लिए CH3 CH2 OH plus your concentrated H2SO4 will give you, सॉरी ऊपर लिखना पड़ रहा है, उल्टा रिएक्शन हमने बना दिया, जगह नहीं थी इसलिए, सॉरी फॉर दैट. हाँ, हीट भी इधर, हीट की कंडीशन भी लिख लेना. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. ये काफ़ी स्टेप्स में जाएगा. तो चलो वो उसका एक मैकेनिज़्म हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये होता है. लिख लिया, रटना नहीं है. हाँ, रटना नहीं है. ठीक है, देख लिया अच्छी तरह से. अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के सारे स्टेप जानते हैं फॉर दिस रिएक्शन. पहले क्या होगा, पहले CH3, just a second guys, CH3 CH2 OH प्लस हमारा आएगा H प्लस. H प्लस कहाँ से आया, H2SO4 में से. दिस विल टर्न टू CH3. अरे क्या हो गया, ये कभी कभी पागल हो जाता है ना हमारे ये कंप्यूटर. हाँ, आई मोस्टली शूट ऑन मोबाइल्स. CH2OH. वैसे तो इधर मतलब कोने में ऐसे होता है, लेकिन इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर बना दिया. ठीक
ठीक है, ये पहले बनेगा, इधर प्लस की साइन आएगी पॉजिटिव, इधर ओ पे, ठीक है। या अभी स्टेप टू में क्या होता है वो देखते हैं। CH3 CH2 OH पॉजिटिव, उसमें से निकलेगा हमारा H2O। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा फिर, CH3 CH2 प्लस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, CH2 प्लस, इधर एक और H है, इसमें से हमारा निकलेगा -H2। ये जो था ना, इसमें से H2 निकलेगा और बनेगा CH2 CH2, राइट, ठीक है। और जो H2 इधर निकला था, ये दोनों रिएक्शन इधर, और सॉरी और ये हमारा बच गया, ठीक है। ये साइड में लगा दूँगी, स्क्रीनशॉट निकाल देती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों, अभी हम इसका टाइमिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टाइमिंग कैसे हो रही है, कितने टाइम पे ये ख़त्म हो रहा है। फर्स्ट वाला फास्ट है, सिर्फ ले रहा है अभी जगह। इट्स ओके, आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं क्या दूसरे पेज पे लिख लूँ अभी, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन का टाइम मैं लिख रही हूँ। टाइमिंग्स पहले में 0.01 सेकेंड्स, सेकेंड में 9.9 सेकेंड्स लग रही है, और 0.1 सेकेंड्स। अब अगर आप देखो, ठीक है, आपको कोई बोले कि ये पूरा रिएक्शन लगने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 10 सेकेंड के आसपास। क्या आपने इसे इतना महत्व दिया, नहीं, इसे दिया इतना नहीं, आपने इसके आसपास का उसका क्लियर नज़दीक का बता दिया। अभी ये तो सेकेंड्स में है, लेकिन देयर आर चांसेस कि कभी कभी क्या हो जाए, आवर्स में आ जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट में लगा 1 आवर, सेकेंड में फिर लगे 365 डेज़, और थर्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल लगे 2 मिनट्स। तो अभी आप क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे जैसे कि मैंने आज रिएक्शन चालू करवाया, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो मैं कितने टाइम बाद आके देखूँगी। क्या मैं ऐसे बोलूँगी 365 डेज़ के बाद 1 घंटा और 2 मिनट हो तब मैं जाऊँगी उस क्लास में देखने या रिएक्शन कितना हुआ। या मैं ऐसे सोचूँगी कि 365 डेज़, चलो 1 साल ले लेते हैं, मतलब आज जो दिन है उसके 1 साल बाद मैं जाऊँगी देखने, तभी मेरा रिएक्शन हो गया होगा, ठीक है। तो क्या इतने टाइम में इतना छोटा सा जो ये हमारा टाइम है उसे हमने मायने रखा, नहीं रखा। वैसे ही रेट हम जब डिसाइड करते हैं, क्या रेट डिसाइड करते हैं, तभी हम कम टाइम वाले को इतना मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं ज़्यादा टाइम वाले को। अभी इधर सोचो जैसे कि 5 इयर्स होता 365 डेज़ की जगह, तो आप क्या ऐसे बोलोगे 5 इयर्स 1 आवर, मतलब वो बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई। अगर सेकेंड्स में होता तो 1 आवर वॉज अ बिग क्वांटिटी। अगर ऐसा होता कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 आवर, तो आप क्या ऐसा सोचोगे कि मैं 1 आवर 3 सेकेंड्स के बाद एक्सपेरिमेंट देखने जाऊँगी वापस, या जाऊँगा वापस, नहीं ना। मैं तो ऐसे सोचूँगी कि 1 घंटे के बाद जाना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट दैट ह्यूज क्वांटिटी इन फ्रंट ऑफ दिस। तो इससे ये स्टेप को हम क्या बोलते हैं, योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो हमारे रेट को डिटरमाइन करता है, रेट को बताता है। यू ऑल्सो नीड डिटर्मिनेशन राइट इन योर लाइफ, तो ये वही है हमारा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इससे हम शॉर्ट फॉर्म में RDS भी काफ़ी जगह लिखा होता है, RDS। क्लियर?
तो हमारा जो लास्ट हमने जो किया था उसमें हमारा RDS कौन सा था, स्टेप 2 था RDS 9.9 सेकेंड वाला, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है। इधर इतना विजिबल क्लियरली नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूसरे पेज पे लिख देते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, लेट अस राइट शॉर्ट फॉर्म ROD। इट इज़ नथिंग बट रिएक्टेंट कितने स्पीड से डिसअपियर हो रहा है, यानी कि माइनस ऑफ डेल्टा R, माइनस क्यों लगा रहे हैं मैं बता रही हूँ, अपॉन डेल्टा T। रेट इज समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपको याद है हमने किया था R ऑफ A या R ऑफ रिएक्टेंट क्या था, -x अपॉन T था, लेकिन रेट कभी माइनस नहीं हो सकता, राइट। इसलिए हम इधर अगर आगे माइनस की साइन लगा रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है, इसके ऊपर आगे क्वेश्चन आएंगे, करेंगे हम, ठीक है। पहले आप इसका दूसरा पार्ट, दैट इज़ योर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सीख लेते हैं। इट इज़ सिंपल कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ROA। इधर हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाई क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी x/t, पॉजिटिव ही है, ठीक है, ठीक है। आगे आएगा और कि हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे ऐसे ही इसमें भी हो सकते हैं। R ऑफ A/2 एक क्वेश्चन हमने किया था, R ऑफ B/3, ऐसा अगर आपको दे दे तो आप इससे ROD/2 और ROA/3 भी लिख सकते हैं अगर इधर माइनस की साइन हो तो। अगर बोले कि ये रिएक्शन में से मुझे ये रिएक्शन में से रिएक्शन अच्छी तरह से लिख देती हूँ एक बार, रिएक्शन नहीं सॉरी, मतलब जो रिलेशन दिया था वो रिलेशन R ऑफ A/2 इक्वल्स टू R ऑफ B/3, मुझे रिएक्शन बताइए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ठीक है। ओके डन, इट वॉज सिंपल। हाँ, 2 मिनट लगाने जैसा भी नहीं था, आई नो इट। क्या था, याद करो, कोफिशिएंट जाता है नीचे तो क्या होगा 3B और 2A, अभी हम लगाते हैं आगे से। फिर माइनस साइन कहाँ आती है, रिएक्टेंट में, तो इधर एक माइनस की साइन है तो इधर से तो ऐसे ही जाएगा। ये बनाया था आपने, हाँ, यस, देन वेल एंड गुड, कीप इट अप, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते जाओ, कॉमन सेंस थोड़ा लगाते जाओ, एंड यस यू विल गेट इट, ठीक है, ग्रेट। तो हम आगे सोचते हैं। अभी इसमें और बड़ा दे दे आपको तो क्या आप कर पाओगे। क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले मैं रह गया था, सॉरी, मैं करवा वापस लगा दूँगी। मुझे से 6, आई एम गिविंग यू 1 minute, 1 minute is enough. Solve it and tell me the reaction. Done? Yes, it is simple. Correct. If you have written it as, चलो पूरा explanation ही बता देती हूँ। 6 को मैं नीचे ले जाती हूँ। ओके, बाय 5। अभी माइनस साइन को मैं इधर भी लगा सकती हूँ, इधर भी लगा सकती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। यूजुअली ऑप्शंस में ही ऐसे देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, MCQ टाइप्स होते हैं तो, राइट। MCQ में जहाँ पे भी साइन लगाई हो फिर लगा सकते हो। इधर इन जनरल में लिख देती हूँ अभी के लिए, हाँ, कि 6A 5B, ठीक है, इन जनरल लगाया।
ऑप्शंस के ऊपर से आप. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट. टाइप्स ऑफ रेट्स. टाइप्स ऑफ रेट्स, लेट्स सी. First is your average rate and instantaneous rate. It is very easy from small, like जब छोटे थे तब से आप पढ़ रहे हो कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होता है. हाँ, छोटे मतलब 11वीं के ही, 11वीं में आप छोटे ही थे, अभी से तो ठीक है. हाँ, एवरेज कब? जब मैक्रोस्कोपिक टाइम हो. मैक्रोस्कोपिक पता है ना, जब थोड़ा बड़ा टाइम में हम देख रहे हैं चेंज. इंस्टेंटेनियस में क्या आ जाता है? लिमिट टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0. सो हम लगा देते थे डी आर, dx by dt, instantaneous velocity, right? dr by dt. dr is your change, very minute change. ठीक है, तो एक ग्राफ के बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं और कॉमन भी सीख लेंगे. Here it is. This is your time, this is your amount कितना है. यूनिट की अभी चिंता मत करो, यूनिट आएगा. ओके, यूनिट रेट का क्या होता है? मोल पर सेकेंड, राइट. तो मोल ही ले लो, चलो मोल ही, और इधर भी हमारा सेकेंड्स है. एंड हियर इट इज़ 2. आपको रेट बताना है. आई एम गिविंग यू 2 minutes. रेट बता. दिस इज़ अ बिट सिंपल थिंग, इसलिए मैं आपको पहले पूछ रही हूँ, फिर मैं समझाऊँगी. 1 minute आई एम गिविंग यू. रेट बिटवीन योर टाइम t = 5 to 10. ठीक है, अभी तो सिंपल हो गया. 1 minute I am giving you. निकल गया. ओके, रेट क्या लिखते थे? चेंज ऑफ रेट. तो इधर मूल में देखते हैं 2 - 1/10 - 5, 1/5 मिल गया रेट मोल पर सेकेंड. ठीक है, क्लियर. 0.2 मोल पर सेकेंड. एक मतलब कॉमन ग्राफ क्या होता है? रिएक्टेंट और उसके बीच, प्रोडक्ट के बीच, वो देख लेते हैं. ये शायद पहले भी देखा होगा आपने इक्विलिब्रियम में. ठीक है, ये फिर वो कॉमन आएगा. इक्विलिब्रियम में भी आपने कैसा ग्राफ देखा था, राइट? उसी का ग्राफ है. नाउ जनरल रिएक्शन में हमने जो मैंने करवा दिया था पहले ही, आपको वो सिखा दिया है कि कैसे, हाउ डज इट गेट्स ऑन. क्या था? एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. ए प्लस बी gives you C प्लस डी. चलो, ये कर लिया है. सो आई एम गिविंग यू जस्ट 5 seconds. यू कैन डू इट. 5 seconds इज इनफ. You just need to think or write. Done. This was done already. So कम ऐसा मत बोलना कम टाइम दिया, ऐसा नहीं चलता. थोड़ा ज़्यादा टाइम दो. पहले कर लिया था. क्या था? बाय ए, बट माइनस का. हाँ, वैसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इट इज़ द सेम. इधर इसके नीचे लिखो या आगे 1/c ऐसे लिखो. ये कर लिया था हमने. ठीक है, याद है ना? बाकी वीडियो वापस देखो. चलो, ओके. तो एक क्वेश्चन दिया है. आई एम गिविंग यू 1 minute. कम ऑन, यू कैन डू इट. ठीक है, और थोड़ा डेटा बढ़ा दो क्या? नीचे लिख देती हूँ. चलो, दिख ना रहा ऊपर. थोड़ा डेटा बढ़ा देती हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए. थोड़ा हाई लेवल कर देते हैं. t = 0 पे 5 मोल है इसका. आई एम सॉरी, इसका 5 मोल है.
जस्ट अ सेकेंड। हाँ चालू कर दो, एटलीस्ट रिलेशन तो लेके आओ, तब तक मैं लिख देती हूँ। t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे इसका है 10 मोल। सेम ही है, इसी का मैंने बताया है। ओ सॉरी मैंने इंटरचेंज कर दिया। मैं इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है, वापस, या उधर लिखूँ, चलो उधर ही लिख देती हूँ। हाँ 10 का 5 और 5 का 10 कर दिया। होशियार हो, पता चल गया वैसे तो। 5 मोल, ठीक है। कम ऑन, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, डू इट। चलो हो गया, नहीं हुआ तो पोज करके कर लो, ठीक है। मैं चालू करती हूँ, साथ में करो बाकी, ठीक है। पहले तो हम इसे क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ योर ए, सबसे पहले का 10 मोल। ए माइनस 2x, याद रखना, ए माइनस 2x इज़ योर 5 मोल। इससे x क्या मिलेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कर देती हूँ। 2x इक्वल्स टू a माइनस 5, 10 माइनस 5 5, x इक्वल्स टू 5/2, 2.5। क्या मिला हमें, 2.5। रिलेशन तो लिख लिया होगा, चलो ये ना हुआ तो मैं समझू कि पहला क्वेश्चन है। रिलेशन तो लिख लिया है ना, अदरवाइज यू नीड टू वर्क हार्ड। हाँ, और लिख लिया है देन गुड, अगर सॉल्यूशन भी आ गया देन वेरी गुड, ठीक है। तो क्या इसका रिलेशन क्या होगा, r इक्वल्स टू -1/2 r ऑफ a इक्वल्स टू 1/3 माइनस, वेरी गुड, r ऑफ b इक्वल्स टू 1/5 r ऑफ c। लिख लिया है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, ठीक है। r की वैल्यू हमें क्या मिली, r बाकी है अभी करना, ठीक है। 2.5 x हमारा 2.5 था, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स, तो 0.25 मोल पर सेकेंड, ठीक है। ओ मोल, आई एम सो सॉरी, मोल पर लीटर सेकेंड, आई एम सो सॉरी। पहले मैं मोलारिटी पर सेकेंड बोल रही थी, मोल पर सेकेंड नहीं, सॉरी, थोड़ा हो गया, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मोल पर लीटर पर सेकेंड, अरे मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड। ग्रेट, अभी इस सभी वैल्यू में पुट कर दो। आर ऑफ ए क्या मिलेगा हमें, ये हमारा आर ऑफ आर मिला 0.25, आर ऑफ ए क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स माइनस 0.5, आर ऑफ बी माइनस ऑफ 3 टाइम्स, देखो इधर ऊपर जाएगा, माइनस इक्वल्स टू आर है ना, तो आर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, माइनस की साइन इधर जाएगी, -3r, तो माइनस ऑफ 0.75। समझ आ रहा है, थोड़ा बेसिक से करवाऊँ मैं, क्लियर ना, करने की ज़रूरत नहीं है ना। आई एम थिंकिंग कि आप एक अच्छे मैथ स्टूडेंट हो, अगर नीट स्टूडेंट हो तो भी ये तो कर सकते हो ना यार, 10th तक तो मैथ्स पढ़ाई था ना, राइट। और ये वीडियो JEE एडवांस तक के लिए, अगर JEE एडवांस देना है आपको तो इतना बेसिक तो आई होप कि क्लियर हो। बाकी आप वीडियो देख के कर लो, जितना जल्दी हो सके उतना कर लो, कुछ बुराई नहीं है, लेकिन कर लो। क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ r, मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 1.25 मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड। क्लियर है, इतना किसका आ गया था, वेरी गुड, आ गया हो तो बहुत अच्छा, ग्रेट। स्क्रीनशॉट निकाल देती हूँ। क्लियर है इतना, बस यही करना था। एक और एग्जांपल दूँ,
चलो होमवर्क के लिए दे देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यू लेक्चर, ठीक है, फ्रॉम पार्ट 2। क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन। हाँ, सॉल्यूशन दे दूँगी मैं, डोंट वरी अबाउट इट, सॉल्यूशन दे दूँगी मैं। थोड़ा बड़ा दे दूँ, चलेगा? ठीक है। ये है आपका t इक्वल्स टू 0 पे एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। डोंट वरी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका तो 0 ही रहेगा। आई एम गिविंग फॉर 4D, ठीक है, दिस वैल्यूज आर फॉर 4D और इधर फिर 8। सिंपल है, हो जाएगा। हाँ, इतने से ही हो जाएगा, डरो मत, कुछ उसमें नहीं प्रॉब्लम होगा। पहले मैं तो 2 वैल्यू दी थी, अब तो सिर्फ 1 दी है, कैसे करेंगे ये वो, थोड़ा सोचो, हो जाएगा, इजी है, ठीक है। लिख लो, थोड़ा ठीक से कर देती हूँ 8, बाकी कंफ्यूजन हो जाएगा वापस। इधर तक हम आज रखते हैं। इसके सॉल्यूशन होमवर्क करके आना, और इसके रिलेटेड कोई भी आपको अगर बोर्ड PYQ मिल जाए, हाँ, सबसे पहले तो बुक रीड करो NCERT इतना पार्ट की, then jump to in text मिलेंगे आपको थोड़े, then jump to exercise and then jump to exemplar। इतना हो जाए फिर ही बाहर जाओ। एक बार और लिख देती हूँ, टेक्स्ट बुक, then in text, then exercise। इतनी चीज़ें करनी है इतने पार्ट की। शायद आगे के 2-3 पेज मैंने किए होंगे, मुझे ठीक से पता नहीं, मैं तो भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन नंबर भी बता दूँगी, एक्सरसाइज में से एग्जाम्पलर में से कितने करने हैं वो, बट वो करके आना, दैट इज़ योर होमवर्क। उसके पहले दूसरे पार्ट पे मत कूदना, उतावड़ मत करना, एग्जाम्पलर करो, फिर ही कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जंप करो। हाँ, बोर्ड PYQ कर सकते हो क्या, करो। अगर चैप्टर वाइज आपको कहीं पे मिल जाए तो फिर JEE नीट जो भी आपका ड्रीम है, JEE है, नीट है, जो भी है, ठीक है। अगर एडवांस देनी है, वीडियो इज इनफ फॉर दैट, बट एडवांस के कोई करो। हाँ, डोंट वरी कि मैं ले आओगी एडवांस का क्वेश्चन इधर, ठीक है। एक उसके लिए एक पर्टिकुलर सेशन, मतलब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक एडवांस PYQ के लिए ही होगा, और JEE PYQ, नीट PYQ के लिए भी मिल जाएगा। ओके, बाय आर सर बना लेंगे नीट PYQ का वीडियो, मैं बनाऊँगी JEE का और एडवांस लेवल का। एक्सप्लेनेशन फॉर नीट इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और काफ़ी चीज़ें नीट वालों को मैं बोल दूँगी, वो स्किप कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। ओके, have a good day and don't forget to do all this step is much more important than this video। ये सब हो जाए फिर टेस्ट भी, चलो कुछ हम करेंगे टेस्ट का, ठीक है, डन, ओके, थैंक यू।